Hey guys, how are you doing? Today in this video, we are going to talk about rabies, a deadly viral disease which is 100% fatal. That means once clinical symptoms appear, death is inevitable. And the death is so painful, frightening, and so much inexorably cruel. But fortunately, this is 100% preventable. How? We are going to cover all those things in this video. So let's begin first with the newspaper headlines. Why this was in news? Recently, Australia, UK and USA released advisories, and Australian Health Department advisory क्या थी? It urged citizens who may have received the rabies shot in India to check if they needed additional replacement doses. And why this was, in news? Because the alert was issued over concern that counterfeit batches of द वैक्सीन अबेरैब है ना, अबेरैब जो वैक्सीन है इंडिया में, इंडिया इज नंबर 1 इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन। और जो उसकी फेक वैक्सीन का बैचेस के बारे में जो न्यूज आई थी, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूके हैज रिलीज सच एडवाइजरीज। ओके, दिस वाज द न्यूज, राइट? सो लेट्स go through basics of this rabies from the WHO website, right? तो अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स देखते हो, you will find that rabies is a vaccine preventable viral disease, and most importantly, which I want to underline, this is 100% preventable through prompt and appropriate medical care. That is what is about rabies, right? India is endemic for rabies and it accounts for around 36% or at least 33% to 36% world's rabies death. That is very painful, right? Okay, it occurs more than 150 countries and territories. Dogs are primary source and the vast majority of rabies, virus reservoir. You can say like that, right? Let me give you another data. Across the world, 59,000 deaths, 59,000 deaths are reported, across the world. And these deaths are, due to dog-mediated rabies. And in India, one-third of 59,000 is approximately 20,000, right? So they say 18,000 to 20,000 deaths. 20,000 deaths they occurred in India per year from dog-mediated, rabies. That is the case. If you were to talk about Asia, for example, तो अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में approximately 60% rabies death they are confined to Asia only. And if you add African continents, then they are approximately 95%. 95% death, these regions are caused by the rabies, rabies virus. All right. So it is endemic in India, and let me tell you one data. It is from the National Rabies Control Program, which has released this data, and these are the death. For example, there is in these deaths are reported in India, and you can see, Jammu and Kashmir region deaths were 2012 to 2020 रेबीज केसेस डेथ वर 0. सबसे ज्यादा कहां पर है? तेलंगाना में 1906 डेथ, and then you can find out 907 here in Maharashtra. If you go through this, Kerala 142, Tamil Nadu 238, right? Then Karnataka 145, Gujarat 142, राजस्थान में 0 है, यूपी में 0, उत्तराखंड में भी 0 है ना? तो यू कैन गो थ्रू, यू शुड हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो ये एंडेमिक है, कौन? रेबीज, है ना? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेबीज शॉर्टली. तो रेबीज इज एंडेमिक, इट इज एंडेमिक, मतलब एक स्थानीय बीमारी है, एक्सेप्ट 2 रीजन्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार में नहीं है, एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप एंड लक्षद्वीप. तो लक्षद्वीप में Lakshadweep and Andaman do not have this rabies, okay, and otherwise everywhere these cases are there. अगर मैं इंडिया की डेटा की बात करूं, और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली व्हाट इज डज सुप्रीम कोर्ट इन November 7, 2025, let me tell you, the Supreme Court, November 7th November 2025, 2 months ago, what Supreme Court has done, it has issued a sweeping set of direction to curb, public safety crisis of stray dog attacks at free moving, they are also called, free moving dogs, freely moving dogs, FMDs, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये थी, stray dogs attacks and cattle related road accidents, and therefore they have asked,
Supreme Court has asked to remove them from schools, hospital, and other institution, and that highways be cleared of wandering cattle and animals that have caused those fatal deaths. 80 millions अगर मैं बात करूं इंडिया में अगर मैं बात करूं approximately 8 crores 80 millions stray dogs are there, or free roaming dogs, sometimes they are called freely roaming dogs are there in India, right? And if you want to talk about dog bites, तो डॉग बाइट्स का जो केस है वो लगभग कितना है 20 मिलियन डॉग बाइट्स पर ईयर 20 मिलियंस डॉग बाइट्स राइट 20 मिलियंस डॉग बाइट्स आर देयर इन इंडिया एवरी ईयर, है ना? तो लगभग 20 मिलियन बोले तो 2 करोड़ के करीब क्या होते हैं डॉग बाइट्स हर साल इंडिया में देखने को मिलते हैं। एंड आउट ऑफ देम 20,000 केसेस आर सो डेडली देयर आर डेथ। तो डेथ कितनी है आउट ऑफ दैट 20,000 डेथ आर देयर पर ईयर इन इंडिया। दैट इज द डेटा फॉर इंडिया, राइट? ऑलराइट, 95% अगर मैं बात करूं रेबीज के बारे में बात करूं तो रेबीज क्या है 95% कौन है इसका रिजर्वॉयर है डॉग्स। तो डॉग्स आर रिजर्वॉयर ऑफ दोज viruses of rabies, rabbit. 2% case wild animals, 2% wild animals, है ना, including for example including cats, cats भी इसी में आ गया। एंड कितना बच गया लगभग 3% के करीब। तो बाकी 1% 3% के करीब अदर मैमल्स। कौन से मैमल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल मंगूज इज कॉल्ड नेवला आई थिंक इन हिंदी, राइट? मंगूज जिसको नेवला बोलते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम मंगूज देयर आर फॉक्सेस, they also carry, cows also carry, dogs हो चुका है ना, buffaloes also, monkeys, है ना? So there are all mammals, they are susceptible to this disease, right? How mammals bites, scratches and licks or broken skin, I am going to talk about that shortly. So let me tell you what is rabies virus. Let's talk about rabies. It is most neglected tropical disease. तो rabies कैसी disease है? तो अभी मैं इसका आपको बताता हूं। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम। तो रेबीज इट इज कॉल्ड मोस्ट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, एनटीडी इज फॉर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, है ना? लीसा वायरस जीनस के कारण ये फैलता है। तो जस्ट रिमेंबर नंबर 2 पॉइंट, दिस इज लीसा वायरस जीनस, है ना? एंड इट इज नेगेटिव सेंस आरएनए कंटेनिंग वायरस। तो व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज दिस? इट इज आरएनए कंटेनिंग वायरस। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। तो सिंगल स्ट्रैंडेड, लेट मी टेल यू, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज दिस? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, है ना? तो दिस इज सेकंड फैक्ट अबाउट दिस। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस, इट इज अ न्यूरोट्रॉपिक वायरस। व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज दिस? मैं रेड पेन से लिख देता हूं सो दैट यू कुड मेक सेंस। न्यूरोट्रॉपिक वायरस, है ना? ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बिकॉज दिस इज नॉट this virus, it is affinity with neurons, basically nervous system. Most importantly, it is not travel in the body through via blood, है ना? not transmitted via blood, है ना? तो ब्लड के द्वारा क्या होता है? ये ट्रांसमिटेड नहीं होता। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, है ना? तो कैसे होता है? सपोज करो किसी डॉग ने, एंड डॉग्स आर 95% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायरस, रिजर्वायर ऑफ दिस वायरस। तो वायरस यहां पर गया, इनोक्यूलेटेड, मान लो पांव पे काट लिया इसको, है ना? देन व्हाट हैपेंस? दिस वायरस इट इज बेसिकली रेप्लिकेटेड इन द मसल्स, है ना? यहां पर ये मसल्स में क्या हो गया? रेप्लिकेटेड हो गया। एंड दिस इज दिस वायरस व्हाट इट डज एक्चुअली, लेट मी टेल यू। तो जो ये वायरस है ये क्या करता है? ये वायरस निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ क्या करता है? बाइंड करता है। एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, they are specific, NMJs are specialized synapse actually, है ना? तो हमने कई बार सिनेप्स के बारे में बात की है। सिनेप्स क्या होता है? जब भी दो न्यूरॉन्स आपस में क्या करती हैं, when they interact, it is called synapse. Neurotransmitters are basically transmitted between these binds. तो जो NMJ है, NMJ is what? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन basically. तो यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड केमिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड, राइट? तो लेट मी टेल यू what is happening here. Electrical signals, electrical signals and chemical signals. So electrical signals are transferred or transmitted, or they are converted into chemical signals, and these chemical signals are called acetylcholine. This is some
अ बिट टेक्निकल। एंड उसके बाद क्या करता है ना, उसके बाद क्या करता है, फोर्थ नंबर पे आप देखोगे, रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू दिस वायरस ट्रेवल, वायरस ट्रेवल्स विद इन एक्सॉन। तो अगर आपको एक बेसिक फंडा पता है, दिस इज द, if you remember the basic of let me show it here, somewhere here, okay। तो ये क्या है, अगर मान लो ये कोई न्यूरॉन है, तो these are the dendrites of neuron, these long processes are called basically axon, this is axon terminal। तो नॉर्मली जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो इंफॉर्मेशंस क्या करती हैं, उसको बोलते हैं एंटीरियो, रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। एंटेरो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऐसे होता है, इनपुट इनपुट इनपुट, है ना, देन इट इज एक्सॉन की तरफ ऐसे जाता है ना, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट इज दिस। इन रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट थिंग्स गो बैकवर्ड, इट इज काइंड ऑफ रिटर्न ट्रिप, एंड नेचर हैज प्रोवाइडेड दिस रिटर्न ट्रिप। मतलब कहने का मतलब है, एक्सॉन से जो ये सोमा, दिस इज कॉल्ड सोमा, मतलब बॉडी, यहां की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट चलता है, दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, और उसी का यूज कौन करता है, दिस रेबीज वायरस। दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट दिस रेबीज वायरस, एंड इट इज कॉल्ड न्यूरोट्रोपिक वायरस, है ना, इट डजंट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एक्चुअली, है ना। तो और ये सीधा कहां चला जाता है, ब्रेन पे चला जाता है, दिस इज व्हाई इट इज वेरी डेंजरस, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सीधा सीधा क्या होगा, ये रिटर्न ट्रिप क्यों है, रिसाइकलिंग के लिए, सिग्नलिंग के लिए, एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए। एंड इसी मेथड से दिस रेबीज वायरस, लिसा वायरस, दिस रेबीज वायरस गो टू, दिस ट्रेवल विद इन एक्सॉन, है ना, कौन से, रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से। एंड देन व्हाट इट डज एक्चुअली, इट रेप्लिकेट इन मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड लोकल डॉर्सल रूट गैंग्लिया एंड रैपिड असेंट टू द ब्रेन। और सीधा ये कहां चला गया, ब्रेन के बाद चला गया। एंड देन व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, infections of the brain start with neuronal dysfunction, not neural death, है ना, न्यूरल डेथ नहीं होती, बल्कि क्या होता है, डिसफंक्शन, है ना, डिसफंक्शनल। तो न्यूरल डेथ इज नॉट इन द केस ऑफ रेबीज। अगर कोई टेक्निकल पूछे आपसे, देयर इज डिसफंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एक्चुअली, राइट। एंड दिस देन फ्रॉम हियर इट इज सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड, है ना, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ऐसे बाहर की ओर जाएगा, ऐसे सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड होगा, कहां पर, salivary gland, skin, cornea, and even heart, etc. That's how this rabies virus is basically spread. That is how the spread of this rabies virus, right? Okay, all right. तो ये क्या है, बुलेट शेप्ड का वायरस होता है, इनवेरिएबली फेटल वंस क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर। सो जो इसका ये है, ये क्या है, बुलेट शेप्ड, है ना। तो इसका जो शेप है बुलेट शेप्ड है। तो सीधी सीधी भाषा में बात की जाए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, अब इट डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स, राइट, फॉर एग्जांपल इंक्यूबेशन पीरियड। If someone asks you what is the incubation period, मतलब इन्फेक्शन में और इन्फेक्शन के बाद फर्स्ट सिम्टम में कितना टाइम लगता है। इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स, डिपेंड्स अपॉन द वायरस की अमाउंट कितना है। अदरवाइज इंक्यूबेशन पीरियड इट कैन बी, इट कैन बी 2 to 3 months, एंड इट कैन बी 2 to 3 months, इट कैन बी इन सम केसेस 1 year से लेकर 3 years, है ना, 1 year से लेकर 3 years। एक्सेप्शनल केस में इट कैन टेक 8 years also. Exceptional cases, it can be 8 years also. तो incubation period का मतलब है first symptoms to appear. How much time is there between dog bite or say inoculation, virus inoculation and first symptoms to appear, है ना। Why this is so? Because viral movement is very slow, है ना। Why so? Why so long? Viral movement along the body is very slow. Viral movement क्या है, very slow है। और कितनी स्लो है, इट इज 5 से लेकर 100 मिलीमीटर पर डे, है ना। तो वायरस एक दिन में 5 mm के करीब जाएगा, 100 mm जाएगा, 100 mm जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो डिपेंड्स अपॉन वेयर डॉग बाइट टेक्स प्लेस, है ना। तो साइट ऑफ बाइट इज इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ वायरस इन द सलाइवा इज इंपॉर्टेंट, एज एंड इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी ऑफ द विक्टिम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज हाउ रेबीज वायरस वर्क्स। अच्छा, रेबीज वायरस के जो 3 फेजेस होते हैं, लेट मी टेल यू, देयर आर 3 फेजेस ऑफ क्लिनिकल, क्लिनिकल सिम्टम्स आने के जो रेबीज के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोड्रोम, है ना, दिस इज कॉल्ड बेसिकली दिस वन, समवेयर इट मस्ट बी रिटन, है ना, इट इज कॉल्ड प्रोड्रोम। प्रोड्रोम फेज हैज टू डू विद बेसिकली फीवर, मैलेज, हेडेक, नोजिया, दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम्स लाइक फीवर, है ना। प्रूरुटिस इज बेसिकली इचिंग, परसिस्टेंट इचिंग, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेंस इचिंग, इट इज कॉल्ड इंटेंस इचिंग, है ना, इंटेंस इचिंग होती है इसमें। अगर मैं पैरेस्थीसिया की बात करूं तो इसको बोलते हैं पिंस एंड निडल्स,
ये टेक्निकल टर्म्स है, पिंस एंड निडल्स। कई बार होता है ना बॉडी में कैसे कई बार क्या होता है बॉडी में, अगर आपको आइडिया हो तो जस्ट अ मिनट, ओके तो कई बार आप देखोगे बॉडी में क्या हो जाता है, पिंस एंड निडल्स जैसा पेन होने लग जाता है ना। तो कैसा पेन होगा, पिंस एंड निडल्स टाइप के, दिस इज पैरेस्थीसिया। एंड ओके एंड देन फॉर एग्जांपल पैरेस्थीसिया इज देयर, देन अनदर फेज इज कॉल्ड एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज, 1 to 4 days, है ना। इसमें क्या होगा, हाइपर सलाइवेशन, बहुत ज्यादा सलाइवा निकलेगा। पिलो इरेक्शन को बोलते हैं गूजबम, गूजबम का मतलब होता है जो बाल खड़े हो जाते हैं, दैट इज द वन केस, है ना। और जो बिहेवियर होगा इनमें क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी, कंफ्यूजन एंड एजिटेशन, पीरियोडिक डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का बड़ा होना छोटा होना, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो सलाइवा के साथ क्या हाइड्रोफोबिया, है ना। तो मतलब पानी से डर लगना, एंड द सेम टाइम थ्रस्ट इज देयर, प्यास भी लगेगी, एंड हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, यू नो फियर फ्रॉम द हाइट, dysphagia, you know, difficulty swallowing something, inspiratory spasm, hyperventilation, बहुत deep breathing लेना, है ना। एंड देन हेमेटेमेसिस का मतलब होता है, हेमेटेमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग ब्लड एक्चुअली, है ना। तो ब्लड इज आल्सो वोमिटेड आउट। क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया मतलब, क्वाड्री मतलब 4, प्लेजिया मतलब पैरालिसिस, चारों लिम्स में पैरालिसिस हो सकता है। डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया इज व्हाट, डिसआर्थरिया इज डिफिकल्ट स्पीकिंग, यू नो। Dysphagia, hyper salivation, we have talked, inspiratory spasm, respiratory failure, and hydrophobia and acrophobia, you know, and finally it leads to death and coma, you know, the ultimate is what, death. तो ultimate जो इसका क्या है, उसके बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। This is why it is very dangerous. How to prevent it? Most importantly, it is 100% preventable, you know. This is the good news, okay, this is the good news, this virus, this rabies is 100% preventable, है ना। इसको 100% प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे, इसकी पहले तो 3 कैटेगरी का एक्सपोजर होता है ना। तो कैटेगरी के हिसाब से इसे दिखा रखा है, जैसे अगर क्या होगा, टचिंग और फीडिंग ऑफ एनिमल्स, है ना, लिक ऑन द इंटैक्ट स्किन, कॉन्टैक्ट ऑफ इंटैक्ट स्किन विद सीक्रेशन। तो इसमें क्या है, रिकमेंडेड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन, यू नो, टू प्रिवेंट टू स्प्रेड डिसीज, है ना। तो किसी डिसीज को रोकने के लिए जो प्रिवेंशन किया जाता है, दोज आर कॉल्ड प्रोफिलैक्सिस, राइट। तो प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस आर देयर, राइट। तो ट्रीटमेंट है ना बेसिकली, है ना। तो प्रोफिलैक्सिस आर बेसिकली ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट डिसीज, है ना। तो दे आर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट ट्रीटमेंट इज एक्सपेक्टेड, नन इफ रिलायबल केस हिस्ट्री इज अवेलेबल, है ना। वॉश एक्सपोज्ड एरिया विद सोप एंड रनिंग वाटर। पर जो कैटेगरी 2 and 3 आर वेरी डेंजरस, निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन, है ना, minor scratches or abrasion without bleeding, it has to be done with wound management, wash exposed area with soap and running water to 15 minutes. And why this is all done, and third one also understand, you know, this is basically contamination of mucous membrane with saliva, है ना। ऐसे अगर कहीं पे कट लग जाए, राइट, मल्टीपल ट्रांसडर्मल वाइट्स, इन केस में क्या करते हैं, लेट मी टेल यू क्विकली। देखो 3 types of things are done, physical, chemical and biological. Physically, wash all wounds with running water. Why? Because mechanically you can remove virus from the wounds, है ना। और 15 मिनट तक अगर आप साबुन के साथ वुंड को धुलते हो तो वायरस टू सम एक्सटेंट, यू नो, देयर आर मैकेनिकल डेथ ऑफ द वायरस। Wash all wounds with soap, water and antiseptic, again inactivation of the virus. Biological things are infiltrate immunoglobulin into the depth and around of the wound, है ना, neutralization of virus, which is basically vaccine prevention, right. It should be noted that immediate washing of wounds is priority. However, the victim should not be deprived of the benefits of wound management as long as there is an unhealed wound which can be washed, right. तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, let me tell you, 2 टाइप की वैक्सीन होती है, इंट्राडर्मल रूट एंड इंट्रामस्कुलर रूट, याद रखना। और इसमें इंट्रावीनस रूट नहीं होता, नॉट इंट्रावीनस रूट, है ना। तो वेन्स में नहीं रखते, ब्लड में डायरेक्ट नहीं डालते उसको। इसके 4 डोजेज होते हैं, 4 विजिट्स में। एक तो 0 डेज पे आपको क्या करना होता है, ये वैक्सीन लगानी पड़ती है। उसके बाद 3rd डेज पे, 7 डेज पे एंड 28 डेज पे, दैट इज द रेबीज वैक्सीन, है ना। जैसे अभय रैप के बारे में भी बात भी चल रही थी इंडिया में, राइट। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके, ऑलराइट। उसके बाद RIG, है ना, RIG इज व्हाट, ह्यूमन रेबीज, और फॉर एग्जांपल रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको भी दिया जाता है। और ये दोनों के दोनों आने चाहिए इसमें। तो RIG इज वेरी इंपॉर्टेंट, RIG शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू ऑल पेशेंट विद कैटेगरी 3 एक्सपोजर, है ना। और RIG क्या करती है, बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है टिल आवर बॉडी स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज, दिस RIG हेल्प्स। RIG का काम क्या है,
जब तक की वैक्सीन लगे नहीं तब तक कौन मदद करेगा, तब तक आपकी जो RIG है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा इसमें, है ना। तो एंटी रेबीज वैक्सीन है ना, उसको इंट्राडर्मल है ना, डिपोजिटेड इन द लेयर्स, एंड उससे क्या होगा, एंटीजेंस क्या होंगे, प्रोवाइड होंगे, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। ठीक है, व्हाई RIG इंपोर्टेंट, दे आर रेडीमेड एंटीबॉडीज, यू नो, तो दे आर ready-made antibodies, this is most important, they are ready-made antibodies, RIG are ready-made antibodies. तो ARV क्या करेगा, it will as you know there are two types of vaccines are there, right, two types of vaccines, ARV anti-rabies vaccine जैसे Avarab and for example RIG, है ना। तो RIG is very very important because it is kind of ready-made antibodies till our body, है ना। Just a minute. Okay, so till our body start making antibodies, RIG is going to make bodies, right? RIG is going to make the antibodies. In immunocompromised individuals such as HIV/AIDS patients, है ना, immunosuppressive therapies, steroid, cancer, chemotherapy, congenital, you know, gluconemia, etc. RIG should be administered in both category 2 and category 3. So RIG is also important, you know, if you want to say. National Action Plan on Dog Mediated Rabies Elimination is based on the One Health approach. One Health vision, One Health approach का मतलब ये होता है human, है ना, all animals, plants and environment, है ना, किसी को भी integrated approach है. This is an integrated approach to target health, right? तो priorities are different for different sectors. Large stray dog populations, है ना, इसको कैसे मैनेज करना है, बायोडाइवर्सिटी एंड चैलेंजिंग वाइल्ड लाइफ सेक्टर, अर्बन, पेरी अर्बन, रूरल एंड वाइल्ड लाइफ इंटरफेस, लिमिटेड लॉजिस्टिक, ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल, you know, welfare, lack of political will, there are many things, you know, which are under this dog mediated rabies. National Action Plan for Dog Mediated Rabies Elimination from India by 2030, ये NAPRE जो है ये क्या कहता है बेसिकली, सबसे पहले तो ये कब आया था, in 2015 the world called for an action by setting a goal of zero human death due to dog mediated rabies by 2030. That was, you know, that was announced by WHO, है ना, that goal was called for by WHO. Countries like Western Europe, Canada, US, Mexico, Japan, Latin America have already eliminated dog mediated rabies through successful canine rabies vaccination, है ना। तो वहां पर क्या है, वैक्सीन हो चुका है, पर इंडिया में तो 80 मिलियन डॉग्स कौन से वाले हैं, फ्री रोमिंग FRDs, है ना, फ्री रोमिंग डॉग्स, फ्रीली रोमिंग डॉग्स है, ठीक है। एंड वन हेल्थ अप्रोच के थ्रू इन कंट्रीज ने तो काम कर लिया है, लेकिन NAPRE के जो स्ट्रेटेजिक एक्शन है वो क्या क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज सीरम इज व्हाट, RIG, व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, ठीक है। टू all animal bites victim at all levels of health facilities, capacity building of professional in appropriate animal bite management, है ना, strengthening surveillance of animal bites and rabies cases in India or in human, sorry, to strengthen diagnostic capacity on rabies, information, education and communication, IEC, for increasing awareness. For example, in this video, this is what I am also doing, you know, increasing awareness, right? So you should understand. अच्छा, who are at risk actually? Poor and vulnerable people are risk. तो रिस्क पे कौन है, रिस्क पे वो लोग होते हैं जो लोग क्या है, पुअर हैं एंड दे आर वल्नरेबल, है ना, जिनका ज्यादा रिस्क है। लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ पीईपीज, है ना, तो अवेलेबिलिटी ऑफ पीईपी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, है ना, पीईपीज, है ना। तो इसमें कम से कम 2-3 चीजें आ गई थी, है ना, वुंड मैनेजमेंट, है ना, उसके अलावा मतलब फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, है ना, एंड देन फाइनली वैक्सीन, and both the vaccine basically anti-rabies vaccine and another one was what, RIG, है ना, RIG, ठीक है। तो we should remember all those things. उसके अलावा टोटल ARV का जो प्रोडक्शन है इंडिया में अराउंड कितना है, 50 मिलियन, है ना। तो अगर मैं आपको ARV के बारे में इंडिया में बताऊं तो 50 मिलियन प्रोडक्शन इज देयर, है ना। आउट ऑफ 50 मिलियन 15 मिलियंस आर एक्सपोर्टेड, है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, तो आपके पास कितना बच गया, 35 मिलियन। बट जो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, इंडिया की रिक्वायरमेंट है अराउंड 60 मिलियन, एंड दैट इज व्हाई देयर इज गैप ऑफ, यू नो, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ दीज वैक्सीन्स, राइट। तो हु आर एट मोर रिस्क, डेली वेज अर्नर्स, यू नो, फार्मिंग कम्युनिटी, ब्रिक एंड क्लीन वर्कर्स जो ईंट उठाते हैं, है ना, रिमोट पॉपुलेशन बेसिकली, राइट,
Okay, so this is what is it all about. I hope I have covered most of the things what is there in this rabies, right? Okay, so prevention is 100% preventable disease. Pre-exposure and post-exposure prophylaxis are available. It means prophylaxis means treatment that is given to prevent disease, and modern vaccines. And for example, I was also reading about monoclonal rabies, RMABS, rabies monoclonal antibodies. This is also in the news, and you should also read about it. So guys, before winding up this video, I am giving you one question to write. Rabies remains a 100% fatal yet largely avoidable zoonotic disease in India. Despite the launch of National Action Plan for Dog-Mediated Rabies Elimination (NAPRE), deaths continue to occur, especially among vulnerable population, right? Critically examine the challenges in eliminating rabies in India and suggest a multi-sectoral way, One Health, है ना? Multi-sectoral way forward using the One Health approach. This is what you have to done. तो पीईपी में भी क्या होती है बेसिकली 3-pronged approach है मैनेजमेंट ऑफ द वुंड पैसिव इम्यूनिटी थ्रू आरआईजी है ना रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दैट प्रोवाइड्स टेम्पररी एंटीबॉडीज और रेडीमेड एंटीबॉडीज एंड देन यू हैव दिस वन active immunization with ARV anti-rabies vaccine for a gap of 1 week, 0 days, 3 days, 7 days, 28 days, and tetanus salt is also given, tetanus salt is also given, right, apart from this ARV, right. तो सबसे पहले क्या होगा RIG है ना, then ARV and tetanus salt. So this is kind of awareness video also. Thank you so very much. If you like this video, don't forget to hit like, share button, don't forget to comment, and if you really like the channel or our videos, don't forget to subscribe. Thank you so very much. See you guys until next time. Till then, goodbye. Thank you.